Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. Today date is 7 January 2021 and I am teaching you chapter number 20. Name of the chapter, Birth of a Nation. Let's do little recapitulation, student, what we have done in the previous video. So, student, in the previous video, I explained you what are the directive principles. Okay. So, in this we discussed that what are the things which are mentioned in the constitution for the state government, how they work for the welfare of the people living in the state. Okay, so in the previous video we discussed about the directive principles. Okay, what is given in the constitution, how the state government work for the welfare of the people living in that state. Okay, so some of the points which we have already discussed in a detail, today I am doing a little recapitulation. If you want to watch the detailed video, you can watch the previous video. So what are the functions which are given in the constitution, how to work for the welfare of the people of a state, that is ensure work for every citizen. Okay, provide free and compulsory education for all children up to 14 years of age. Next, no one is exploited on the basis of wealth, religion or caste. Next, provide proper living condition for the people. So these are the points which we have discussed in detail in the previous video. Now in today's video we will study, I will explain you about the fundamental rights and duties. So in today's video we will discuss about the fundamental rights. So first of all, student, you understand what is the need of the fundamental rights. ठीक है, अब देखो ब्रिटिश रूल में, ठीक है, when India is ruled by another country, that is at the time of a British rule, lot of people are suffering due to the British rule before the independence. ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ज़्यादा पीपल क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, किसकी वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से, बिकॉज ड्यू टू द लॉस विच दे मेड. ओके, तो उन्होंने जो लॉ बना रखे थे, लॉ मीन्स कानून जो बना रखे थे ब्रिटिश रूल्स ने, तो दैट इज द रीजन लॉट ऑफ सफरिंग इन द पीपल, एंड दैट इज द रीजन ऑल द पीपल यूनाइटेड टुगेदर. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश रूल में लोग इतने तंग आ गए थे उनके लॉ से. जैसे अब जो है आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ठीक है, तो इंडियंस लीडर्स ने ये देखा कि जो एट द टाइम ऑफ ए ब्रिटिश रूल इंडियन लीडर्स सी डैट, उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इंडियंस जो थे ड्यू टू द ब्रिटिश लॉज दे हैव lot of suffering. So that is the reason
at the time when we Indian leaders are making the constitutions, they decided to give some fundamental rights to the people. ठीक है, इसलिए जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडियंस लीडर ने ये डिसाइड किया कि जो भी सिटीजन है इस कंट्री के, ठीक है, जो भी इस कंट्री के सिटीजन है तो उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए जिससे कि उनका एक्सप्लोटेशन ना हो सके। एक्सप्लोटेशन ना हो सके मीन्स उनका शोषण ना हो सके, कोई उनका शोषण ना कर सके। तो इंडियन लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि जो भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनके अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, बिकॉज दे आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सो उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए जिससे कि उनका कोई शोषण ना हो सके। ठीक है, अब नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट इज द right to equality। okay, so first fundamental right which is given, that is the right to equality. So what does it mean? It means that there is no difference between the people according to the religion, caste और इन occupations also। ठीक है, दे आर फ्री टू चूज एनी ऑक्यूपेशन। तो राइट इक्वलिटी मीन्स देर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन द पीपल रिलेटेड टू रिलीजन और कास्ट, और दे कैन चूज एनी ऑक्यूपेशन। इसकी इक्वलिटी दे दी गई। ठीक है, कि एनी पीपल हु इज लिविंग इन दिस कंट्री, कोई भी पीपल जो इस कंट्री में रह रहा है तो सबको इक्वलिटी है। ऐसा नहीं है कि जो कास्ट और जो रिलीजन मेजॉरिटी में है तो उनको ज़्यादा पावर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। जो दोज रिलीजन्स विच आर इन माइनॉरिटी आल्सो, दे हैव आल्सो गिवन द इक्वलिटी। ओके, सो दैट इज द रीजन द फर्स्ट राइट विच इज गिवन, दैट इज राइट टू इक्वलिटी। तो इक्वलिटी इन दिस मैनर, ठीक है, इक्वलिटी किसमें? रिलीजन में, कास्ट में, ओके, और इन ऑक्यूपेशंस। ठीक है, जो भी वो ऑक्यूपेशन करेंगे वो कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वल टू, मैंने बोला कोई भी ऑक्यूपेशन जैसे जो कुछ भी है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम इट इज डिसाइडेड द पर्सन विल वी डू विथ टाइप ऑफ ए ऑक्यूपेशन। लेकिन अब जब इक्वलिटी दे दी सब चीज में, तो एनी वन कैन डू एनी वन कैन डू एनी ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली आप उस कास्ट के हो तो आपको वही वर्क करना है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज की क्या दे दी गई? इक्वलिटी दे दी गई। तो ये है आपका राइट टू इक्वलिटी। फिर नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। सो व्हाट डज इट मीन राइट टू फ्रीडम? अब फ्रीडम किस सेंस में? ठीक है, तो एनीवन फ्री टू स्पीक। ओके, अब देखो जैसे आप कोई भी चीज है, कुछ भी गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो एनी पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू दिस कंट्री, कोई भी इस कंट्री का सिटीजन है, तो हम उसके अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, वी कैन गो एनी वेयर। ठीक है, एक तो हो गया एनी वन कैन स्पीक। ठीक है, फिर हो गया एनी प्लेस यू कैन गो। अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो यू कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इज इट क्लियर? एंड यू आर फ्री टू जॉब एनीवेयर इन इंडिया।
एंड यू कैन स्टे एनी प्लेस इन इंडिया। तो फ्रीडम किस चीज की दी गई? राइट टू फ्रीडम मीन्स राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम इट मीन्स यू आर फ्री टू स्पीक, कोई भी बोल सकता है किसी भी टॉपिक पे कोई, ठीक है, ये हो गया। नदर है इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यू कैन गो, ठीक है, कंट्री के किसी भी पार्ट में आप जा सकते हो, ठीक है। आप फ्री टू जॉब एनीवेयर, आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, कंट्री के किसी भी पार्ट में स्टे कर सकते हो। आप चाहो तो कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट धरना प्रदर्शन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज की फ्रीडम दे दी गई, ठीक है। तो नेक्स्ट था आपका ला था राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम मीन्स एनी वन फ्री टू स्पीक, ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यू कैन गो, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यू कैन स्टे, और इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग तो आप धरना प्रदर्शन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजों की आपको क्या दे दी गई? फ्रीडम दे दी गई, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक। अब देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, तो इसमें क्या चीजें, व्हाट आर द थिंग्स, अब इसमें क्या मेंशन किया गया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, किसी का भी शोषण नहीं होगा, ठीक है। ओल्ड समय में ऐसा हुआ करता था कि लोगों को बेच दिया जाता था और जो उन्हें खरीद लेते थे तो सारी जिंदगी वो उसके गुलाम बन के या सारा वर्क करते रहते थे। तो ये चीज अब नहीं होगी, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ओके। और जो 14 ईयर, जैसे कि आपको मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बताया था कि कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी जो भी बच्चे जिनकी एज 14 तक है, ठीक है। तो अब ये क्या है, राइट टू एक्सप्लोइटेशन, जैसे आप लोग देखते होंगे ना छोटे बच्चों को जिनकी एज 14 ईयर से कम है, तो वो उनसे वर्क नहीं कराया जाएगा, ठीक है। ऐसा क्या बना, ऐसा ह्यूमन राइट्स में बना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में ये पॉइंट भी बना, क्योंकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन मीन्स किसी का शोषण नहीं करना है, ठीक है। ओल्ड टाइम में क्या हुआ करता था, जैसे लोगों को बेच भी देते थे, ठीक है। और वो अगर किसी ने किसी को बेच दिया किसी पर्सन को, तो सारी जिंदगी जिसको उस पास उसने बेचा है तो वो उसके लिए वर्कआउट करता था, ठीक है। तो ये भी एक शोषण है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगेंस्ट अनदर थिंग इज दैट कि जो 14 ईयर्स से कम ईयर के बच्चे हैं जिनकी एज लेस देन 14 ईयर्स है, दे विल नॉट वर्क, ठीक है। जैसे क्रैकर्स की फैक्ट्रीज है, ये सब है, ये सब फैक्ट्रीज में इन छोटे बच्चों से वर्कआउट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट 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 टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब देखो राइट टू फ्रीडम, व्हाट डज इट मीन्स? आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो आप अपने धर्म के बारे में दूसरे लोगों को भी बता सकते हो, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट राइट टू फ्रीडम
right to freedom of religion. Another important thing is this that is mentioned, ये किया गया कि आपको forcefully no one change your religion, ठीक है। फोर्सफुली आप, अगर आप अपने मन से चाहते हो कोई दूसरी रिलीजन्स को फॉलो करना तो यू कैन, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन के हो, अगर आप खुद से अपने मन से, इफ दिस इज डिसाइडेड बाय यू, इफ यू वांट टू फॉलो द अदर रिलीजन यू कैन डू इट, बट नो वन फोर्सफुली, कोई फोर्सफुली आपकी रिलीजन को नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। सो दिस इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ए रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट एक तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट इफ यू वांट टू चेंज योर रिलीजन, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप अपनी रिलीजन चेंज करना चाहते हो, अच्छी बात है, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कोई दूसरा फोर्सफुली आपकी रिलीजन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी आपकी रिलीजन को चेंज नहीं कर सकता। तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्लियर। नेक्स्ट है कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है। देखो हमारी कंट्री में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, तो हम किसी के भी कल्चर को में इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी अपने कल्चर रीति रिवाज जो भी है वो फॉलो कर सकता है। दूसरी चीज़ है एजुकेशन राइट्स, ठीक है। जैसे डिफरेंट रिलीजन्स है, तो रिलीजन से रिलेटेड आप अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन अपने लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, मुस्लिम्स में कितने मदर मुस्लिम्स की अपनी टीचिंग्स चलती हैं, मदरसे बोलते हैं ना उसको, जहाँ वो अपने धर्म से रिलेटेड बच्चों को या अपने धर्म से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं। तो आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो, तो आप अपने धर्म से रिलेटेड एजुकेशंस अपने लोगों को दे सकते हो, इसकी भी ह्यूमन राइट दी गई, ठीक है। तो ये सारी कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, सो आपको अपने कल्चर भी, कोई भी कल्चर से आप बिलोंग कर सकते हो आप, वो भी ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आप अपने रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन भी दे सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, देखो आप अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। एक होता है ना जो क्लास फोर्थ में तुम लोग को पढ़ाया था, पब्लिक वो, और व्हाट इज ए, जो थिंग्स हमसे बिलोंग कर सकती हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमसे बिलोंग करती हैं, जो हमारी हैं, तो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो अपने नाम से, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स आप अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है। जैसे होता है ना, आपका अपना घर होता है, या आपकी फैक्ट्री या आपकी बिल्डिंग है जो आपके नाम से है, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स आप अपने नाम से चीज़ें ले सकते हो, तो दिस इज द अनदर, ठीक है। अब देखो एक बार इसकी रिकैप्चुलेशन करते हैं। राइट टू इक्वलिटी बताया मैंने, राइट टू फ्रीडम बताया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स भी है, और राइट टू प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। ये आपके 1 2 3 4 5 6 आपके हो गए फंडामेंटल राइट्स। लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला फंडामेंटल जो राइट है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
right to constitutional remedies. ठीक है. This last one, human right, is the most important one. Okay, we will continue this in the next video. Thank you.